Assalamu alaikum, my dear students. I'm Muhammad Shahid with the course of Organizational Behavior, which is offered to BBA 6 Honors and MBA 4 3.5. Today is our lecture number 10. Let's start our today's topic. Our today's topic is Affective Events Theory, which is in chapter number 4 of Emotions and Moods. We have already discussed emotions and moods in our previous lectures. So let's start our today's topic. First, we discuss what is affective events theory. Affective events theory is basically a model that suggests that workplace events cause emotional reactions on the part of employees. I repeat, emotional reactions on the part of employees, which then influence workplace attitudes and behaviors. A model of affective events theory demonstrates that employees react emotionally to things that happens to them at work, and this reaction influences their job performance and satisfaction. So let's start our discussion on affective events theory. We have seen that emotions and moods are an important part of our lives and our work lives. But how do they influence our job performance and satisfaction? We will discuss that influence in today's topic. Let's start. Affective events theory, the concept which is presented by Weiss and Crescenzo 1996, explains how emotions and moods influence job performance and job satisfaction. The theory explains the relationship between employees' internal influences, personality, emotions, cognition, and their reactions to incidents that occur at workplace. Affective events theory is a theory of affect, the broader term for emotional experiences, including emotion and mood, in the workplace. In addition to focusing on effect, it encompasses cognitions, behavior, attitudes, and other crucial psychological constructs to explain job behavior and performance. The theory primarily builds on the already established cognitive appraisal models and has gathered support from many areas of study in the field of emotions to create a more encompassing theory of work behavior. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में जो बेसिक हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं वो दो चीज़ें हैं जिससे इफ़ेक्ट हो के हमारी जो दूसरी दो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करती हैं। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो आपके इमोशंस और मूड्स हैं, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब ये जो इमोशंस और आपके मूड्स हैं ये आपके पर्सनैलिटी के साथ लिंक करते हैं, आपके इंटरनल हैं। अब वर्क प्लेस के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं वो आपके इमोशंस
और आपके मूड्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। जो आपका इमोशन और जो आपके मूड उस वक्त होगा, आप उसी के हिसाब से, आप उसी के तरीके से फिर रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके इमोशंस और आपके मूड्स आपकी जॉब प्लेस के ऊपर, आपकी वर्किंग के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो इफ़ेक्ट कैसे करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी जॉब को, आपकी जॉब परफॉर्मेंस को, और ये जो जॉब परफॉर्मेंस है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको मेजर करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कर रहा है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो एम्प्लॉइज़ की पर्सनल या इंटरनल फीलिंग्स के साथ लिंक करता है, जिसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो आपके मूड्स और इमोशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले इवेंट्स की वजह से इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो फिर आपके इमोशंस और मूड्स जो होते हैं वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी जॉब परफॉर्मेंस और आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। दूसरा जो चीज़ है वो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप को एम्प्लॉयज़ के इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, मीन्स टू से उसकी पर्सनैलिटी, इमोशंस, कॉग्निशन, और उनके रिएक्शंस को जो वर्क प्लेस के ऊपर होते हैं। और ये रिलेशनशिप जो है वो फिर उनकी जॉब परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ लिंक करता है। तो ये इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी जो बेसिक इसका कंसेप्ट है वो ये है कि आपके इमोशंस और मूड्स आपकी जॉब परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन को कैसे असरअंदाज करते हैं। दूसरी जो चीज़ इसमें हमें पता चलती है वो ये है कि आप जो इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपके इमोशंस और मूड्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं और फिर उससे आपकी जॉब परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस होती है। अब ये उसकी डेफिनेशन है जो वेज और क्रोपेजेंजो ने 1996 में इसको एक्सप्लेन किया। मैं इसको पढ़ देता हूँ। Argue that effective work behaviors are explained by employee mood and emotion, while cognitive-based behavior are good predictors of job satisfaction. To put it simply, emotions and moods are an important element in how employees handle situations at work. तो ये वही जो हम लास्ट में डिस्कस करके आए हैं स्लाइड में, उसी को उसने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है आगे। इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी proposes that there are two paths to job behaviors, both of which are at least partially influenced by affective reactions to events at work. However, cognitive processes play an essential role in the creation of these reactions. The theory builds on past theoretical successes while also adding a few new elements. In particular, the notion of time is essential to the model, as well as a more detailed explanation of emotions in the workplace in explaining job behavior. तो इसमें वो बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं हमारे, जो हमारी मेंटल प्रोसेस के साथ लिंक कर रहे हैं, वो जो है इसके साथ इफ़ेक्ट हो रहे हैं। वो रिएक्शंस जो हैं वो जब हम देते हैं मूड्स और अपने जो इमोशंस हैं उसके साथ जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो इससे इफ़ेक्ट होता है। तो इसके साथ हमारा जो वर्क बिहेवियर है वो फिर डेवलप होता है। इसके बाद द थ्योरी proposes two types of emotions, two types of emotional incidents at work that are distinguishable and have a significant psychological impact upon workers' job satisfaction. Positive inducing uplifts, and second one is
Negative inducing means to say hassles or hurdles. The theory begins by recognizing that emotions are a response to an event in the work environment. The work environment includes everything surrounding the job, means the variety of tasks and degree of autonomy, job demands, and requirements for expressing emotional labor. This environment creates work events that can be hassles and uplifting events or both. Elements of affective event theory. The theory is based on the following elements: work events, work environmental features, personal dispositions, emotional reactions to work events, and outcomes. First, I would like to explain the previous slide, uh, the two concepts, work uplifting events and hassles. For example, hassles are colleagues who refuse to carry their share of work, conflicting directions from different managers, and excessive time pressures. Second, positive means uplifting events includes meeting a goal, getting support from a colleague, and receiving recognition for an accomplishment. These work events trigger positive or negative emotional reactions to which employees' personalities and moods predispose them to respond with greater or lesser intensity. People who score low on emotional stability are more likely to react strongly to negative events, and our emotional response to a given event can change depending on mood. Finally, emotions influence a number of performance and satisfaction variables such as organizational citizenship behavior, which we have discussed in our previous lectures, organizational commitment, level of effort, intention to quit, and workplace deviance. Now we discussed the elements of affective events theory. First one is work events, which includes daily hassles and daily uplifts. Work environment features means characteristics of job demands, requirements for emotional labor. Personal dispositions means your personality and mood. Emotional reactions to work events, which are positive and negative. Outcomes are job satisfaction and job performance. Total theory is based on these elements. The model is attached in later slides. Now, what are the work events? These are the different types of emotional events at work that can have a psychological impact on an employee's job satisfaction. There are two types of work events. Positive inducing events means daily uplifts, which we discussed that uplift events include meeting a goal, getting support from a colleague, and receiving recognition for an accomplishment. जब आप कोई गोल अचीव करते हैं, किसी कोलीग के साथ मिलके आप कोई टास्क अचीव करते हैं, आपको कोई कोलीग जो है वो सपोर्ट करता है किसी इवेंट को पूरा करने में, और आपकी उस जो वर्किंग है, जो आपकी एफर्ट है, उसको जब रिकग्नाइज किया जाता है, तो ये अपलिफ्टिंग इवेंट्स हैं जो आपके मूड, जो आपकी बिहेवियर के ऊपर पॉजिटिव
इम्पैक्ट्स छोड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होती है और आपको ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है। अब जो नेगेटिव इंड्यूसिंग इवेंट्स हैं जो कि हैसल्स के ऊपर हैं, जिसमें आपको रोका जाता है, लेग पुलिंग की जाती है, आपके ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपके लिए हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सारे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स करते हैं जो आपके इमोशन और आपके मूड्स और आपके बिहेवियर को फिर ख़राब करते हैं, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। वर्क एनवायरमेंटल फीचर्स हैं, जो वर्क एनवायरनमेंट फीचर्स हैं, दीज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद वर्क, मीन्स टू से जॉब की नेचर, उसकी डिमांड क्या है, उसके लिए आपसे क्या क्या वो इमोशनली जो है वो डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं, एंड द इम्पैक्ट दे हैव ऑन जॉब आउटकम्स, और उसकी वजह से आपके आउटकम्स क्या होने चाहिए, आपसे कौन सी आउटकम जो है उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आपसे डिमांड की जा रही है। इसी तरीके से आपको जो ऑटोनॉमी मिली है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे आप वर्क शेड्यूल अपना तैयार करते हैं, अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको जो डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है, जो ऑटोनॉमी दी जाती है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करती है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अगर प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, आपको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी और आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो उतनी अचीव नहीं हो सकती। तो हमारे वर्क एनवायरनमेंट फीचर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जॉब के, जॉब डिमांड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स फॉर इमोशनल लेबर है। पर्सनल डिस्पोजिशंस हैं, दिस एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयज पर्सनैलिटी एंड मूड एंड द इन्फ्लुएंस इट हैज़ ऑन इवेंट्स दैट अकर एट वर्क एंड हाउ दे अफेक्ट परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी और मूड के रिलेशनशिप को और उसके इन्फ्लुएंस को जाहिर करता है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है इसमें कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका मूड जो है वो वर्क इवेंट्स के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी जॉब परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन अफेक्ट होती है। इसके बाद जो है वो इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जिसमें द मॉडल एक्सप्लेन्स द लिंकेजेस बिटवीन एम्प्लॉयज इंटरनल इन्फ्लुएंसेस एंड देयर रिएक्शंस टू इंसिडेंट्स दैट अकर इन देयर वर्क environment that affect their performance, organizational commitment and job satisfaction. Mood may be moderated by organizational commitment, which in return may affect workers' decision to stay or quit. Neuroticism and extroversion explain a lot of variation in individual differences in job satisfaction, with variation in mood and job satisfaction accurately predicting an individual worker's level of neuroticism. Emotions have a strong influence that then either expectancies and attributions in predicting behavioral intentions toward poor performance team members of work. The type of performance feedback provided by supervisors and managers can affect subsequent employee performance and job satisfaction. तो इस स्लाइड में एक उस मॉडल को और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें जो हम पीछे से थ्योरी सारी पढ़ के आ रहे हैं उसकी एक आप इसको समरी जो है उसके तौर पे ले सकते हैं, कि जिसमें आपके इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हैं। इंटरनल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं? आपके मूड और आपका जो इमोशंस हैं वो आपके इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो इंटरनल आपसे कंट्रोलेबल हैं। उस वो अब रिएक्शंस आप देते हैं उसके ज़रिए से, और आपके इमोशंस और मूड जो हैं वो रिएक्शंस जो है वो क्रिएट करते हैं जो वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर इंसिडेंट्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली फिर इफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को और जॉब परफॉर्मेंस को। ये हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया है। मूड जो है वो आपकी उसके साथ लिंक करता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ। इन रिटर्न जो है वो आप वर्कर्स जो हैं वो डिसीजन करते हैं
मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट होता है तो वो जॉब छोड़ देते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी जो समरी है वो आपके लेक्चर से रिलेटेड है यहाँ पे जो बयान की। ये वो जो एक मॉडल है जो हमने जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस के हवाले से किया है, जो आपकी बुक में होगा, वो बेसिकली जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है वो उससे रिलेटेड है। ये जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस को जो आउटकम्स थे जो हम कर रहे थे उसको अलहदा से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें वर्क इन्वायरमेंट फीचर्स जो हैं वो वर्क इवेंट्स को लिंक कर रहे हैं, उसमें डिस्पोजिशंस हैं जिसमें कि आपने मूड और पर्सनालिटी को देखा, वो फिर इफेक्टिव रिएक्शंस हैं और उससे फिर आपका वर्क इन्वायरमेंट है जो कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करता है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आपके इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी के हवाले से कुछ पेपर्स हैं, आप इनको सर्च आउट कर सकते हैं और फर्दर जो आप इफेक्टिव इवेंट थ्योरी के हवाले से कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो सारा इसमें आपको डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये कुछ पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।